Hi everyone, welcome to Espo Shania Science Classes. Today we are going to discuss about class 10 chapter Heredity. The evolution portion is also there in the chapter, but according to the new syllabus of CBSE, it's already omitted from the syllabus. So we are going to discuss only about the heredity. Right? What do you mean by heredity? From the name heredity, what you will understand? That we are going to the introduction, the main terms used in heredity, that we are going to discuss in this video, and the detail of that heredity chapter, Mendel's experiment and everything, we will discuss in the coming videos. Right? What do you mean by heredity? The term heredity, what it indicates? Heredity means the phenomena of inheritance of traits. Right? Trait जो है हम बता रहे हैं, this is means the character of an organism. Whatever, there are different traits in our body, that means different characters are there, right? So जो character हमको हमारा parents के inherited मिल जाती है, वो phenomena of inheritance को हम heredity बताती है. So simply we can say that the transfer of features or the traits, right, or the characters of parents to the offsprings. Offsprings means a new progeny, right, new organism, right, newly produced organism. हम सिर्फ बता रही है parents से बच्चे में, right. So that process, the transfer or the phenomena of inheritance, right, उसको हम heredity बताती है. सारे कैरेक्टर हमको ऐसे ट्रांसफ़र करके सारे हम डिक्टो कॉपी ऑफ पेरेंट है क्या? We are actually the organism produced by sexual reproduction. Animals सारे ऐसे ही है. तो हमारे बॉडी में कुछ characters as such we are getting from our parents, right? So बता सकते हैं we have that inheritance. But हम पूरे के पूरे inherited नहीं है, right? So there will be some variations also, right? You can see that new combination. कैसे वो combination बना रही है? You can we have already reproduction chapter में हमने discuss किया है. We can see that. If you haven't seen the reproduction video, please go through and watch it, right? So I will provide the link of that reproduction chapter here, so you can easily watch that, right? So how that combination is actually, right? Kuch chromosomes, that means 23 chromosome from parent, right? So that means father, and 23 chromosome from the mother it's getting, right? So you can see that they will fuse together to form the zygote. That means the 46 chromosome will be restored here, right? So that time you can see that kuch character of father and kuch character of mother, that's making a new combination. So obviously there will be variations, right? Along with that, some of the characters will be present in this chromosome also. So that's why the you can see that the gene is there still, right? So that's why we are getting the inheritance. So ये phenomena of transfer of that traits, right, from parent to offspring, ये प्रोसेस को हम हेरिडिटी बताती है, राइट. एंड इसमें से कुछ अलग हो रही है, दैट्स कॉल्ड वेरिएशन, राइट. सो हियर यू कैन सी दैट आई हैव ड्रॉन सम पैटर्न सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय हेरिडिटी, राइट. ये देख लो, ये फर्स्ट जनरेशन है. व्हेन इट बिकम द नेक्स्ट जनरेशन, यू कैन सी दैट सम ऑफ द कैरेक्टर एज सच रह गया है ना. देख लो, इधर कुछ कैरेक्टर एज सच रह गया, बट एक न्यू कॉम्बिनेशन, न्यू दैट ना ट्रेट भी आ गई. सो द सेम केस में हियर ऑल्सो यू कैन सी दैट बाकी कैरेक्टर्स एज सच रह गया. You can see that. So these we can see that they are, right, features maintained, right. So that's why it can say that it is heredity. But इधर एक new feature add भी कर दिया. So we can say that that's actually the variation. When it go to the third generation में आ रही है, there is a entirely new combinations we are getting according to the surrounding change. ये मैं सिर्फ एक पैटर्न बता रही है. It can reason में भी बहुत कुछ होगा, मे बी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की वजह से और कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से, राइट. सो द थर्ड जनरेशन इज एक्चुअली एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन, राइट. आप देख सकती हैं, राइट. We are going like that. There will be so many generations after so much of millions of years. So first generation और इसमें से evolve हुआ है, last generation में कोई लेना देना नहीं होगा. That process is actually called the evolution, right? Why this variation is actually occurring? थोड़ा बहुत variation actually it's needed, right? So we know that the changing environment है उधर, if the variation is not there, if it is favorable variation, वो organism survive होगा. Unfavorable variation है, they will die.
right? So favor that na variation is actually it's a very good phenomena according to the environmental changes. You can see that पहले ज़माने में इतना जो diseases और whatever things that ना जो हम देख रहे हैं अभी ये कुछ भी नहीं था. So they have their own advantages and disadvantages. So जो organism फेवरेबल वेरिएशन है वो एडजस्ट कर पाती है न्यू एनवायरनमेंट से, दे विल सर्वाइव, एंड बाकी ऑर्गेनिज्म मर जाती है. दैट्स ए नेचुरल मैकेनिज्म, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तो वेरिएशन जो ऑर्गेनिजम्स में बिल्कुल भी वेरिएशन नहीं है, दे कैन नॉट एडजस्ट विद द सराउंडिंग्स, न्यू सराउंडिंग्स, सो दे ऑटोमेटिकली मर जाती है, राइट. ये एक नेचर की एक मैकेनिज्म है जो मेन थिंग्स को दटना रहने दटना वर्ड से सेलेक्ट करने के लिए, राइट. सो इट्स अ सिलेक्शन मैकेनिज्म ऑल्सो, वी कैन से दैट, राइट. नाउ सो हमने हेरिडिटी के बारे में बोल दिया, इनहेरिटेंस के बारे में बोल दिया, वेरिएशन क्या है वो भी हमने बोल दिया. नाउ ये ट्रेड्स हम जो बता रही है, राइट, हाउ ट्रेड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, हमने बता दिया वो ट्रांसफ़र होगा, कैसे ट्रांसफ़र होती है, that we have to discuss. You can see here we have already learned about the structure of the cell, right. Cell के अंदर you can see that the brain of the cell or the control room of the cell nucleus is there. Nucleus के अंदर you can see that there will be a thread like structure which is called the chromatin reticulum, and at the time of cell division ये chromatin reticulums will be condensed to form a special structure called chromosomes, right. ये chromosomes बनाएगा, right. ये क्रोमोसोम्स को आपने अनवाइंड करके देखो तो यू कैन सी दैट देयर विल बी अ लॉन्ग कॉइल्ड स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड डीएनए, राइट. वो डीएनए की कुछ स्पेशल पार्ट्स, द फंक्शनल पार्ट ऑफ दैट डीएनए, इट्स एक्चुअली कॉल्ड जीन्स, राइट. ये जीन है एक्चुअली हमारा यूनिटी ऑफ, राइट, हेरिडिटी. दिस इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी. एक एक जीन, जो जीन इट विल कोड फॉर, और इट विल, द जीन्स आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस. जो मदर की कुछ कैरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल आई कलर, ब्लू कलर की आई वाला मदर है, राइट. वो जीन्स, दैट कलर कैरिंग जीन्स, it's actually came to that a baby next generation, then obviously they will also have that blue color, right. So the particular genes are there. हर एक कैरेक्टर को इंडिकेट करने के लिए there are different genes, right. So genes are the unit of heredity which actually transfer responsible for the inheritance, right. So I told already genes are responsible for inheritance and different genes for different traits. अलग अलग हाइट के लिए एक जीन होगा, राइट. कॉम्प्लेक्शन हमारा स्किन कलर के लिए, राइट, वेदर ब्लॉन्ड है, ब्लैक है, एवरीथिंग. थोड़ा बहुत एनवायरमेंटल फैक्टर्स डिपेंड होती है, बट द कलर, नेचुरल कलर जो है दैट्स बिकॉज ऑफ द जीन. इवन आई कलर मैंने बोला था, राइट. सो एक ऑर्गेनिज्म की आई कलर, देयर विल बी डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट इन दैट. हाउ मच जीन्स आर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन, राइट, यू कैन सी दैट द करस्पॉन्डिंग विल बी देयर. और न्यू कॉम्बिनेशन बना रही है तो वेरिएशन विल बी देयर, राइट. सो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ द ट्रेट्स आर ट्रांसफर फ्रॉम parent to offsprings. It's actually because of the genes of the parent. When they combine together, you can see that now if the genes is as such maintained, the वो character transfer होगा, right. All decided by genes present in that organism, whatever character, height, complexion, eye color, everything, that means all decided by the genes present in that organism. कौन सी genes present है, according to that the character will be there. I hope you understand that. Now we have discussed that the genes are responsible for heredity, right. Now we are going to discuss how the genes are actually working. Genes always works in pairs, right. That means ऐसे एक नहीं है, एक जीन, आई कलर की एक जीन, राइट, ऐसे नहीं होती है. इट्स एक्चुअली वर्किंग इन पेयर्स. यू कैन सी दैट. अभी एक कलर, यू कैन सी दैट ना फॉर एग्जाम्पल हाइट है, राइट. तो टॉल, इट्स अ जीन. मान लो हमको रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल एंड स्मॉल ये इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट से यूज़ करती है. तो टॉल को रिप्रेजेंट कर लिए यू नीड 2, राइट, genes, then only you can see that it will work in pairs only, right. So all organisms have a pair of gene related to a trait. If tall है, हम बता रहे हैं हमारा trait means the character, that's tall. उसका genes को कैसे हम लिखेगी ऐसे, it will be in pair. Eye color, right. So और hair color, black hair color है, right, black hair color, तो हम कैसे लिखेगी, capital B. और इवन उसका कॉन्ट्रास्टिंग भी होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे. यू कैन सी दैट दीज आर एक्चुअली हम हमेशा पेयर में लिखती है,
उसका मतलब इतना ही है, द जीन्स आर वर्किंग इन पेयर्स, अकेले नहीं है, राइट. हाइट के लिए भी यू कैन सी दैट देयर विल बी टू फॉर्म्स, आइदर टॉल विल बी देयर, ड्वार्फ विल बी देयर. आई कलर देयर विल बी ब्लू एंड ब्लैक, राइट. Hair colors also there, blonde, black. There are different combinations are there. Whatever it is, there will be two forms, right? You can see that. That's actually the contrasting characters बोलती है, right? So all are contrasting characters. ये जो हम दिख रही है, these are contrasting character. Contrasting character की मतलब इतना ही है, the pair of visible character, right? Eye color की you can see that 2-3 forms we can say, right? हेयर कलर के भी ऐसे है. सो दीज ऑल आर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, राइट. सो दे एक्सप्रेस्ड एज इन पेयर्स, राइट. अभी हमने इधर बता दिया था, यू कैन सी दैट वो सिर्फ एक कैरेक्टर के एक जीन से एक्सप्रेस नहीं होगा, इट विल बी ऑलवेज इन पेयर्स, राइट. सो नथिंग बट दोस हु आर एक्चुअली व्हेन यू क्रोमोसोम्स हम डिस्कस कर देती है हायर क्लास, यू विल लर्न अबाउट दैट हाउ इट इज एक्चुअली हैपनिंग. क्रोमोसोम्स के बारे में हम लर्न कर देती है. इट विल बी एक्सेस एट द सेम पोजिशन, दैट्स वाई हम हमेशा पेयर्स में जीन्स एक्सप्रेस करेगा ऐसे बोल रही है, राइट. यू विल अंडरस्टैंड इन हायर क्लासेस मोर क्लियरली, राइट. नाउ what you mean by dominant character, कुछ और that terms we have to understand from this chapter. That's actually you can see that the dominant character and recessive character, dominant gene, recessive genes वगैरह, right. हमारा हर एक कैरेक्टर व्हेन द एक्सप्रेशन विल बी देयर, कुछ कैरेक्टर्स एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फर्स्ट जनरेशन में ही एक्सप्रेस करेगा, राइट. सच कैरेक्टर को हम बताती है डोमिनेंट कैरेक्टर. फॉर एग्जाम्पल इफ टॉलनेस जो कैरेक्टर है पी प्लांट में डोमिनेंट है, राइट. दैट मीन्स इफ टॉलनेस की जीन्स प्रेजेंट है उसी इंडिविजुअल में, वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट जनरेशन में ही एक्सप्रेस करेगा, राइट. सच कैरेक्टर को हम बताती है डोमिनेंट कैरेक्टर और डोमिनेंट ट्रेट. नाउ व्हाट यू मीन बाय डोमिनेंट जीन, दैट जीन डिसाइड द ट्रेट इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अदर जीन. फॉर एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी बता दिया था जीन्स एक्सप्रेस इन पेयर, राइट. तो इधर देख लो, हियर वी हैव कैपिटल टी. ये जीन है, ये खुद की, दैट मीन्स इट इज सेम जीन्स इन पेयर्स में सेम जीन है. दैट टाइम ऑल्सो इट विल एक्सप्रेस इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर जीन, दैट मीन्स इधर एक सेम टाइप की जीन नहीं है तो भी ये जीन एक्सप्रेस करेगा. ये जीन को हम डोमिनेंट जीन बताती है, राइट. सो द टॉल इज एक्सप्रेस्ड जीन, राइट. सो यू कैन सी दैट द जीन विच एक्चुअली डिसाइड, राइट, द ट्रेट इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अदर जीन की प्रेजेंस में भी खुद की इतना कैरेक्टर द ट्रेट को डिसाइड करने वाला जीन को हम बताती हैं डोमिनेंट जीन है, राइट. तो उसको लिखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा कैपिटल लेटर यूज कर देती है. नाउ द रेसेसिव जीन, रेसेसिव ट्रेट, यू कैन सी दैट जो कैरेक्टर वो फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं करेगा, द कैरेक्टर विल बी देयर, वो ऑर्गेनिज्म में वो कैरेक्टर रहेगा, वो कैरेक्टर हिडन रहेगा, राइट. द कैरेक्टर डू नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ बट इट इज प्रेजेंट इन दैट जनरेशन, राइट. सो वो जनरेशन के अंदर वो एक्सप्रेस नहीं करेगा बट वो नहीं है क्या है, उसके अंदर वो हिडन रहेगा. सच कैरेक्टर को हम रेसेसिव कैरेक्टर बताती है, राइट. जैसे कि हमारा ड्वार्फिज्म, राइट. ड्वार्फिज्म एक्चुअली इन पी प्लांट में एक रेसेसिव कैरेक्टर है, राइट. फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द कंडीशन, यू कैन सी दैट इधर जो है ड्वार्फिज्म इट विल बी हिडन, इधर एक्सप्रेसिंग जो कैरेक्टर होती है वो ये टॉलनेस है, राइट. सो दिस इज द डोमिनेंट वन एंड इसको हम रेसेसिव बोलती है, राइट. सो ऐसे ये the corresponding gene, right, that means the gene decide the trait only in the presence of an identical gene, उसको हम recessive gene बताती हैं. that means ये recessive character कब express करेगा, when both are same, right. that means वो दोनों gene same type की आ गई. in presence the gene decide the character only in the presence of the identical gene, that टाइप ऑफ जीन्स को हम रेसेसिव जीन बोलती है, राइट. उसका कैरेक्टर को रेसेसिव कैरेक्टर बोलती है, तो देयर करस्पॉन्डिंग जीन को हम रेसेसिव जीन बोलती है, राइट. उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा स्मॉल लेटर यूज कर देती है, राइट. नाउ आई टोल्ड यू ऑलरेडी जीन्स आर एक्सप्रेस्ड इन पेयर्स, राइट. तो हियर यू कैन सी दैट हम हमेशा ये पेयर्स में लिख रहे हैं ना, तो इट कैन बी सेम टाइप और इट कैन बी द अदर वन, राइट. इसको हम बताती है एलील्स, द वेरिएंट फॉर्म्स ऑफ जीन्स, राइट. सो यू कैन सी दैट दे आर एलील्स और एलीलोमॉर्फ्स. टॉल है, टॉल वी कैन रिप्रेजेंट आइदर ये प्योर टॉल है, यू कैन सी दैट इसमें टॉलनेस ये दोनों जीन अलग अलग है, राइट. इधर सिर्फ टॉलनेस की जीन ही है, दोनों सेम है, वेरिएंट्स आर सेम,
राइट. हियर द वेरिएंट्स आर डिफरेंट. एक टॉल वाला जीन है, एक ड्वार्फ वाला है. इधर दोनों सेम है, एक डॉर्फनेस की है, ये भी डॉर्फनेस की है. सो हियर यू कैन सी दैट दे आर एक्सिस्टिंग पेयर. द वेरिएंट फॉर्म्स ऑफ ए जीन, right, one pair of gene control the same character. So here this is actually controlling the tallness, height character here, right. So here also it is controlling the height, this also controlling the height itself, right. So one pair of gene control the same character, उसको हम allele बताती है. It's actually the variant form of a gene, right, a pair of contrasting character, उसको हम allele बताती है. I hope it is clear, right. Now next term we have to learn, that's actually homozygous and heterozygous condition, right. हमने already genes के बारे में लिख लिया है. उसमें you can see that both genes are same type है, जैसे कि ऐसे कैपिटल टी, इसमें टॉल की दोनों जीन्स टॉलनेस की है, इसमें दोनों जीन्स डॉर्फनेस की है. सो बोथ जीन्स आर सेम टाइप है, राइट. सो इफ द सेम टाइप ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट, उसी कंडीशन को हम होमोजाइगस कंडीशन बताती है. होमो मीन्स सिमिलर, राइट. होमोजाइगस कंडीशन. इफ द जीन्स आर प्रेजेंट इन, दैट्स एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि एक टॉलनेस की, एक डॉर्फनेस की, बट दे आर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. दैट मीन्स जो अलील में द कंडीशंस, द जीन्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट है, तो उसी को हेट्रो, अलग अलग, राइट. सो हेट्रोजाइगस कंडीशन बताती है, राइट. सो हाइट कैरेक्टर की होमोजाइगस कंडीशन दो है, एक टॉलनेस की कैपिटल टी, इफ डॉर्फनेस की अनदर वन. उसका हाइब्रिड टाइप की कंडीशन, दैट मीन्स हेट्रोजाइगस कंडीशन भी है, राइट. हियर यू कैन सी दैट वन इज द टॉल वाला, वन इज द डॉर्फ वाला, बट इधर कौन सी एक्सप्रेस करेगा, विच इज द डोमिनेंट वन विल एक्सप्रेस इन दैट, राइट. दैट ओनली द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. Now some more terms you have to understand from this chapter, that's actually what you mean by genotype and phenotype, right. Once you understand all these terms, we can understand the chapter very well, right. So in this video we are only discussing that main terms and all the basic things, right. So here one more thing, last some more points we have to discuss. What do you mean by a genotype, right. हमने बता दिया था ये है कैपिटल टी, दिस इज हमारा जीन, राइट, है. मीन्स what will you say that the genetic makeup है, right. So the genetic makeup of an individual, हम बता रही है एक टॉल वाला इंडिविजुअल है, उसका अंदर जीन्स कैसे है, वो प्योरली दैट मीन्स होमोजाइगस कंडीशन में है क्या, और वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है क्या. वो जीन टॉलनेस की दो जीन्स प्रेजेंट है, एक प्योर टॉल, दैट मीन्स इट विल बी इन होमोजाइगस कंडीशन. दूसरी है एक्सप्रेस तो टॉल ही है, बट इट कैन बी हाइब्रिड फॉर्म में, दैट इज हेट्रोजाइगस कंडीशन में. सो दीज इफ यू आर चेकिंग इसको, दैट्स एक्चुअली द जेनेटिक मेकअप, राइट. बाहर आपको दिखेगा टॉलनेस ही है, राइट. सो ये जो जेनेटिक मेकअप को हम बताती है द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, राइट. अभी मैंने बता दिया था बाहर आपको दिखती है, राइट. इसका जेनेटिक मेकअप ऐसे है, कैपिटल टी, राइट, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों इसका जेनेटिक मेकअप है. ये भी टॉल है, ये प्योर दैट मीन्स होमोजाइगस है, ये भी टॉल ही है, बट इट इज़ हेट्रोजाइगस. तो बट आपको बाहर क्या दिख रही है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, वो सिर्फ टॉल ही है. सो दिस एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसको हम बताती है फिनोटाइप, राइट. सो हियर यू कैन सी दैट इफ इट इज़ कैपिटल टी स्मॉल टी कंडीशन है, कॉम्बोशन है, बट इट विल अपीयर एज टॉल although it has the gene of darkness, right. So whatever that means, if it is eye color, आपको blue color में दिख रही है, black hair color और blonde hair color जो आपको दिख रही है, it can be homozygous or heterozygous in gene, right. but आपको बाहर जो appearance दिख रही है, that's called phenotype. So here in this chapter we have discussed about different terms and all these things. I hope you have a clear idea about this terms and all. If you understand it properly, then we can learn about the next things, right. If you like the video, please support me by sharing with your friends. Thank you.